So I want your attention, everyone. You know that we have already started this chapter relations, but yes, the things the topic we have discussed was all the topics which we had already done in class 11. But as I have revised, because of the reason that हो सकता है बहुत लोग class 11 इस topic को seriously ना लिया हो, and this is the reason I have once again restarted. I mean, revised the topic. Now today we are going to do the most important topic, and mark my word, अगर हम जो आज topic जो बता रहे हैं यहीं से exam में 4 मार्क्स समा सकते हैं. From this particular topic only, एग्जाम में तुम देखना, the question will be of 4 marks. और जो हम बताएंगे, अगर तुम उतना को भी फॉलो कर लो, उतना को दिमाग में बैठा लो, it is more than sufficient, I'm saying. But yes, you have to engage yourself in. So there are two ways of engaging yourself. One first thing is whatever things I'm writing in the board, you must copy it down. अगर मैं जो चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर तुम लोग वो चीज को कॉपी ना करो और बैठा रहो, और जो मैं चीज होमवर्क करने की मतलब क्लास वर्क में दूं अगर करने के लिए, अगर वो दो चीज ना करो तुम लोग, तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाए. And 100% sure that you are going to leave in just few minutes if you don't do these two things. So I want everyone to please concentrate properly and follow the class. Okay, so with this, let's begin our today's class. So the name of the chapter is relations. You know, we have already started. And in this chapter relations, today we are going to do a topic that is equivalence relation. Clear? Now, what is an equivalence relation? Before starting, let me first of all explain you. R is a relation in A. Now, what do you mean by R is a relation in A? Means we can say that relation R is a subset of A cross A. It is a subset of A cross A means all the elements of A cross A is only those elements of A cross A is present in relation R which satisfies the given condition. तो ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ठीक है. और रिलेशन इन ए का मतलब क्या होता है? रिलेशन इन ए का मतलब होता है कि जो आर जो रिलेशन है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, वहां पे ए और बी दोनों सेट ए को ही बिलोंग करेगा. This is the meaning of R in relation R in set A. Now write on the topic, everyone, equivalence relation. Okay, write on the topic equivalence relation. What do you mean by an equivalence relation? Write down. Write down. A relation R in A where A is a non-empty set. It is a non-empty set. What do you mean by non-empty set? मतलब A में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होगा. Okay, so a relation R in A is said to be an equivalence. Is said to be an equivalence relation. A relation R in set A, a relation R in A, where A is a non-empty set, is said to be equivalence. Is said to be equivalence if number one, it is a reflexive relation. If R is a reflexive relation. Now, what do you mean by a reflexive relation? I'll explain you. Don't worry. What do you mean by reflexive relation? हम बताएंगे. First, you write down this. I mean the theory part first. Number two, if R is a symmetric relation. If R is a symmetric relation, and number three, R is a transitive relation. R is a transitive relation. Okay. मतलब अगर एक रिलेशन इन ए, अगर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you have to understand what is
a reflexive relation, what is a symmetric relation, and what is a transitive relation. So now we will spend our time in understanding these three topics. What is a reflexive relation first? Number one, reflexive relation. तो ध्यान से नोट करना, सपोज अगर मान लो एक सेट है A in which the elements present are 1, 2, 3. Clear? And suppose you have a relation R. Suppose you have a relation R, which is a relation in A. So suppose R के अंदर अगर मान लो present क्या क्या elements है, देखो ध्यान से. Try to understand मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर मान लो एक set A है 1, 2, 3. And R is a relation which contains 1, 1. It contains 2, 2. It contains 3, 3. So suppose R is a relation in which we have 1, 1, 2, 2 and 3, 3. Now everyone tell me, अगर मैं बोल रहा हूँ reflexive relation, तो पहले मुझे reflexive का मतलब समझा दे. पहले इस example से पहले मतलब तो समझा दे, उसके बाद मैं पूछूंगा कि क्या बाकी relation जो भी मैं example में लिखूंगा क्या वो reflexive है या नहीं. पहले मतलब समझो. तो एक बात बताओ, R की A के अंदर कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है कि नहीं? कितना एलिमेंट्स है? देयर आर 3 एलिमेंट्स. नाउ टेल मी, अगर 1 सेट A के अंदर बिलोंग कर रहा है तो 1, 1 R के अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है. 1, 1 belongs to R. Yes. 2 belongs to set A. Now tell me whether 2, 2 belongs to relation R or not. Yes, definitely it belongs to relation R. 3 belongs to set A. Now tell me whether 3, 3 belongs to relation R or not. Yes, we can clearly see that 3, 3 belongs to relation R. So mark my word what I am saying. How to check whether a relation is reflexive? In order to check whether the relation is reflexive or not, note down, if set A contains 3 elements, every element, देखो हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर, आइडेंटिटी मतलब सिमिलर, मतलब या अपने भाषा में ऐसे समझो कि जितना एलिमेंट्स होगा सारा एलिमेंट्स का सिमिलर पेयर, सिमिलर मतलब पहला और दूसरा सेम बना करके अगर वो सारा रिलेशन R के अंदर प्रेजेंट होगा, इट मींस दैट रिलेशन R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इसका मतलब सेट A के अंदर 1, 2, 3 है तो 1, 1 R में बिलोंग कर रहे हैं, 2, 2 R में बिलोंग कर रहे हैं, 3, 3 भी R में बिलोंग कर रहे हैं. मतलब ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. सो नोट डाउन, रिफ्लेक्सिव के लिए नोट डाउन एवरीवन, इफ R is R in A, R is a relation in A, तो A के अंदर जितना भी एलिमेंट्स हो, मतलब मेरा मेन मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा बताओ तो? ऑब्जर्वेशन रिलेशन से नहीं स्टार्ट होगा. ऑब्जर्वेशन रिलेशन से स्टार्ट नहीं होगा. कहां से स्टार्ट होगा बताओ तो? ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा सेट से. ठीक, अगर मान लो रिलेशन R is a relation in set A, तो सेट A के अंदर कितना एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर क्या रिलेशन R के अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है मतलब रिलेशन R is a reflexive relation. Please note down everyone. Now everyone tell me whether this relation 1, 1, 2, 2, 1, 3 is a reflexive relation or not? Tell me. So not reflexive. Now what is it? Okay, so what is the reason? What is the reason you are going to write down? Can you tell me? Give me appropriate and mathematical way of representing this. Tell so me. 3, 3 does not belong to set A. No, yes. Can you tell me once again? The 3, 3 does not belong to set A. So you have to write this way. Since 3 belongs to set A, since 3 belongs to set A implies 3, 3 does not belong to relation R. And that's why this relation is not a reflexive relation. Is this clear everyone? मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूं इन A, मतलब ये सेट फिक्स्ड है सबके लिए. Now तीसरा वाला एग्जांपल, R is a relation which contains 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3. Now tell me whether this relation is a reflexive or not. Yes or no? Tell me. So not reflexive. Okay, it is not reflexive. So how many of them thinks that this is not reflexive? Because you can understand what was the explanation, what was the definition for the particular relation to be a reflexive. See, the criteria was this,
कि अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर बिलोंग करना चाहिए, और क्या बिलोंग कर रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है, और उसके अंदर क्या बिलोंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा उससे अपने लोगों को क्या मतलब है। मतलब क्या अपने लोगों को इस चीज से मतलब है कि 1,2 2,3 बिलोंग कर रहे हैं? हाँ, अब इस चीज से तो जरूर मतलब होगा कि अगर हम यहाँ पे 4,4 लिखते हैं, 1,5 लिखते हैं, तब तो ये तो समझने वाली बात है कि ये रिलेशन ही मतलब सही नहीं है। ये समझ में आया मेरी बात? क्योंकि रिलेशन आर इन ए है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो एलिमेंट्स वो 4,4 भी है, तो 4,4 आ कहां से रहे, 1,5 में 5 कहां से आ गए, जबकि R इज अ रिलेशन इन सेट ए, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स ही 1,2,3, तो ये 1,5 तो आ ही नहीं सकता है, 1,5 तो आ ही नहीं सकता है। लेकिन अभी जो मैंने लिखा है, अब बताओ मुझे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बताओ है या नहीं? Yes, it is a reflexive. Please note down everyone. Please do correct yourself अगर किसी ने नहीं समझा है तो। हमको इस चीज से मतलब नहीं है कि 1,2 2,3 इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, हमको इस चीज से मतलब है, इसलिए मैंने क्या बोला, your observation will not start from relation R. Your observation will not start from relation R. Your observation will start is as R is a relation in set A, your observation will begin from set A. That in set A you have got 3 elements, so every element का identity pair उसके अंदर belong कर रहे हैं, मतलब 1,1 2,2 3,3 है या नहीं, बस इतना देखना है, इससे ज्यादा क्या बिलोंग कर रहे हैं उस पे अपने लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। So now tell me whether this is a relation is a reflexive or not, Shubham? Sir, it is reflexive. It is a reflexive relation. Is this clear to everyone? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, listen here. Sir, identity set means 1,1 and 2,2 all those. I'll come to that part, okay, later on. Just I had explained in the last class. I'll explain this once again today. There is something unique about an identity relation that I'll be explaining later on, not now. Now just note down everyone what I'm saying. For all, ये सिंबल का नाम मतलब क्या बताओ तो, ये सिंबल को हम रीड कैसे करते हैं, फॉर ऑल A belongs to set A implies A comma A belongs to R. अगर बिलोंग कर रहे हैं मतलब वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ध्यान देना, मैंने यहां ये नहीं लिखा कि A belongs to set A comma A belongs to R or not, मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल। ये सिंबल का मतलब क्या है, फॉर ऑल मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का, हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर जो बिलोंग कर रहा है उसका आइडेंटिटी मतलब A कॉमा A R के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं that the relation is what, reflexive. Is this clear? Yes or no? Now please copy down everyone this condition, and yes, you can write down that in number 2 it is not a relation, not a reflexive relation. This is the reason for this. This is a reflexive relation, this is a reflexive relation, okay? Now let us see one more example, example number 2 or whatever, let's say एक example हम यहाँ ले लें। now देखो ध्यान से, A is a set of all lines so everyone note down what is set A. Set A is set of all lines in a plane. मतलब मान लो ये प्लेन है, ये मेरा जो बोर्ड है ये पूरा प्लेन मतलब क्या होता है, सरफेस। इस सरफेस के ऊपर जितना भी लाइंस होगा तुम गिन नहीं सकते हो, मतलब एक तरह का ये इनफिनाइट सेट है। ये सेट के ऊपर जितना भी लाइन, सॉरी इस प्लेन के ऊपर जितना भी लाइंस होगा वो सारा लाइंस का मैंने मान लो एक नाम मैंने दे दिया कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, ये लाइन मतलब बहुत सारा, यू कैन नॉट काउंट होनी कितना लाइंस है, बट इस प्लेन के ऊपर जितना भी लाइंस है वो सारे लाइंस का जो सेट है वो क्या है, सेट है। जैसे अभी जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आए हैं उन लोगों को अगर अभी सेट के अंदर रख दे तो सेट में क्या क्या आएंगे, जितना भी लोग हैं यहाँ प्रेजेंट उनका नाम उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे। और जो लोग अभी ऑफलाइन में अटेंड कर रहे हैं वो लोग, अगर हम बोले सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अटेंडिंग ऑफलाइन क्लास, तो ये लोग जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है फिजिकली। अगर हम ये बोले सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, तो जो लोग ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट है वो लोग काम नाम इसके अंदर सेट के अंदर डाल देंगे। तो वैसे ही मतलब एक सेट है, मतलब इस सेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, जितने भी प्लेन के ऊपर लाइंस है, इस प्लेन के ऊपर जितने लाइंस है वो सारे लाइंस का ये कलेक्शन है। अब देखो ध्यान से,
अब एक रिलेशन आर है, ठीक है, क्या है बताओ तो, रिलेशन आर, रिलेशन आर इज L1, L2, L1 L2 है क्या बताओ तो, लाइन का नाम है, L1, L2 क्या है, लाइन का नाम है, और रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसा फॉर्मेट में होता है बताओ तो, सिंगल कंपोनेंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है बताओ, सिंगल कंपोनेंट तो कभी नहीं होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, राइट एवरीवन। जब हम दो सेट से हम ले रहे हैं, मतलब दो सेट के कंपोनेंट्स को रिलेशन से हम एसोसिएट करना चाह रहे हैं, समझ में तो बात, मतलब दो लोगों को, मतलब जैसे कि दो घर के लोगों को हम एक रिलेशन दे करके, कंडीशन दे करके हम उन दोनों को रिलेट करना चाह रहे हैं, तो वैसे ये भी है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन इन क्या है बताओ तो, जो इक्विवेलेंस रिलेशन पर है वो रिलेशन इन क्या है बताओ तो, सेट ए, मतलब यहाँ पे रिलेशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट्स है वो किस सेट को बिलोंग करेगा, एक ही सेट को बिलोंग करेगा, समझ में आया बात। अब बताओ मुझे एक बार, सपोज यहाँ पे सेट ए है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, और रिलेशन इज एन ऑर्डर्ड पेयर of all of lines, it is an ordered pair of lines, but all lines, no, I must give some condition. What is that condition? All lines which are parallel to each other, all lines which are parallel to each other, मतलब अब तुम बोलोगे ये कि नहीं सर ये दोनों पैरेलल है, हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो रिलेशन आर के अंदर जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मुझे लिखना ही पड़ेगा वहां पे, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी तुम्हारा रिलेशन आर के अंदर इस प्लेन, देखो सेट ए में बहुत सारा लाइंस है, और वो जो दो लाइन जो भी एक दूसरे से पैरेलल होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मतलब मुझे रिलेशन आर के अंदर लिखना ही पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ तुम लोग, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना पड़ता है बताओ तो, रिफ्लेक्सिव में मुझे ये चेक करना पड़ता है कि सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है, 5 है तो 3 नहीं, 5 है तो पांचों का पांचों, 10 है तो 10 का 10 एलिमेंट्स, और अगर 12 है तो 12 का 12 एलिमेंट्स का क्या, 12 का 12 एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर, मतलब सिमिलर, मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर पेयर, मतलब सेम का, मतलब पहला कंपोनेंट भी वही, सेकंड कंपोनेंट भी वही, देखो कि क्या वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमको क्या देखना होता है कि क्या वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे सबको, व्हाट डू यू मीन बाय नेवर मीट ईच अदर, लाइंस दैट नेवर मीट ईच अदर, मतलब एक प्लेन पे दो लाइन जो कभी भी मीट नहीं करेगा उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन एक्चुअली, हमको ये बोलना चाहिए कि वो दो लाइन जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम है, ये बोलना चाहिए। एक प्लेन पे अगर दो लाइंस है तो दो लाइंस पैरेलल कब होगा, जब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी सेम एवरीवेयर, जो कि नॉन पैरेलल लाइंस में सेम नहीं होता। देखो यहां अलग होगा, यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग होगा, समझ में मेरी बात। अब बताओ मुझे कि क्या दो पैरेलल, मतलब दो ओवरलैपिंग लाइंस पैरेलल है या नहीं है बताओ। सर दे आर पैरेलल, व्हाई, बिकॉज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, ऑलवेज जीरो, करेक्ट एवरीवन, बिकॉज़ दो अगर ओवरलैपिंग लाइंस है मतलब वो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कहीं भी गलत है बताओ तो, अगर हम ये बोले कि अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कहीं भी एक लाइन में कोई गलती है नहीं। तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव में अपने लोगों को क्या देखना होता है, रिफ्लेक्सिव में अपने लोगों को ये ना देखना होता है कि सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमको रिलेशन आर के अंदर लिखना ही पड़ेगा, मतलब वो क्या है, फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लिसनिंग, सिंस अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, so it implies L belongs to, sorry, for all L belongs to set A implies L comma L belongs to R, yes or no, tell me। क्योंकि हमको पता है कि एक लाइन खुद से पैरेलल होता ही है, a line is parallel to itself, हमको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, बहुत सारा लाइन है, किसी का नाम L1 है, किसी का नाम L2 है, किसी का नाम L3 है, किसी का नाम L है, किसी का नाम L10 है, कुछ भी, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अगर मान लो एक लाइन ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो उसका आइडेंटिटी पेयर हमेशा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो हमेशा वो लाइन का अगर हम आइडेंटिटी पेयर लिखें तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, बिकॉज वो एक दूसरे से पैरेलल होगा ही। एवरीवन समझ में है बात। तो हम देखो क्या किए, हम लोग तो सारा लाइंस को लेके तो चेक नहीं कर सकते ना, हम सारा लाइंस को लेके चेक कर सकते हैं, बताओ तो एक बार, चेक करेंगे तो जीवन बीत जाएगा एक ही समय हमारा।
अगर हम चेक करेंगे तो मेरे तो पूरे जीवन बीत जाएगा एक ही समय में। चेक करते रहेंगे ऐसे, मतलब अजीब सा, ऐसे लगता है मतलब डे ड्रीमर जैसा। ले लेंगे एक लाइन, अच्छा L1 इज पैरेलल टू L1, फिर L2 ले लेंगे। तो ये मतलब मेरा काम यही है क्या? अभी गोइंग टू डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। सो व्हाट हम लोगों ने क्या कर लिया पता है? हम लोगों ने सारा का रिप्रेजेंटेटिव ले लिया। समझ में आ बात? मतलब हम लोगों ने सारे लाइन जितने, मतलब इस फ्रेम के ऊपर जितने भी लाइंस है वो सारे का एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया कि देखो अगर वो ऐसा होगा तो हर एक के लिए ऐसा होगा ही। मतलब अगर एक के लिए ऐसा होगा तो सबके लिए ऐसा होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। ये एक पर्टिकुलर मतलब चीज के लिए सेटिस्फाई नहीं करे, सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में मेरे बात? अब देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं कि एक एक टाइप जो है ना उसको वहां पे मैं क्लियर कर दूं, रादर देन पूरा तीनों टाइप समझा के मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों समझाऊं तो वहां क्लियर नहीं होता है बहुत सारा समय। तो एक बार ध्यान से देखना एक और एग्जांपल। सपोज मान लो सेट ए है, set of all natural numbers, let's say set of all natural numbers, okay? Now R is a relation in A where R is x comma y, x minus y is even. Now please everyone थोड़ा दिमाग लगा के सोचना एक बार, क्या है मतलब इस रिलेशन के अंदर वो सारा ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा जिसका डिफरेंस क्या होगा बताओ तो? इवन का डेफिनेशन क्या होता है पहले बताओ मुझे। Sir, a number which is divisible by 2. Anything which is a multiple of 2, anything which is divisible by 2 is what? Even. So is 2 even? Is 4 even? Is 0 even? Is 0 even? Yes. Yes, it is even because 0 is divisible by 2. Is a multiple of 2. I mean 0 is divisible by 2 simply. Clear everyone? So it is even. अब एक बात बताओ, अब सेम वही यहाँ पे भी आ गया। हम लोग कितने नंबर्स को लेके हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि टेस्ट करना क्या है वो मुझे पता है। क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि टेस्ट करना क्या है? क्या तुम्हारा ये चीज क्लियर है कि तुमको टेस्ट क्या करना है? सबको क्या करना है कि जिस सेट में रिलेशन है, जैसे R इज अ रिलेशन इन A, तो उस सेट का जितना एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है तो एक का आइडेंटिटी पे, दो है तो दो का आइडेंटिटी पे, तीन है तो तीन का आइडेंटिटी पे, 10 है तो 10 का आइडेंटिटी पे, अगर इन्फिनिट है तो इन्फिनिट का आइडेंटिटी पे किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। नाउ डू यू ऑल अग्री दैट, लिसन हियर, कि किसी भी अगर हम एक नेचुरल नंबर को ले लें और हम उसी का आइडेंटिटी पेयर बनाए तो क्या वो डिफरेंस उसका 0 आएगा? आएगा कि नहीं? Yes. आएगा ना? तो अगर बताओ तो एक नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी पेयर क्या उस रिलेशन को सेटिस्फाई, मतलब क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा या नहीं करेगा? इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस, डेफिनेटली करेगा। तो हम वैसे सेम चीज, आई कैन नॉट कीप ऑन टेकिंग 1, चलो 1 ले लिया, 1,1 बिलोंग, समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। 2 ले लिया तो 2,2 बिलोंग कर रहे हैं नहीं, वो चेक करेंगे। 3 बिलोंग कर रहे हैं तो 3,3 बिलोंग कर रहे हैं नहीं, इसके अंदर R के अंदर वो चेक करेंगे। क्या ये तरीका हुआ? कब तक चेक करते रहेंगे? सो वी कैन नॉट डू दिस वे। हम लोग क्या करेंगे देखना है। लेट A belongs to set A be any arbitrary. What do you mean by arbitrary? Arbitrary मतलब any random, कोई भी random value। मतलब यह बोल सकते हो कि वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। Implies A minus A equals to 0 is even। समझ में आया बात? मतलब मैंने ये चेक कर लिया वो एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट A का ले लें, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट हम सेट A का ले लें, ऐसे कोई भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू सेट A, अगर हम उसका ही डिफरेंस निकालें, वो एलिमेंट का ही, मतलब तुम दिमाग में ये सेट कर दो कि तुमने A लिया, x के जगह पे भी A लगा दो और y की जगह पे भी A लगा दो और बस देख लो कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ। सो इट इंप्लाइज फॉर ऑल A belongs to set A implies A comma A belongs to R, hence it is what type of relation? This is a reflexive relation. Now let us take third example. I want everyone to please copy down all the examples which I am giving. Now let us say A is a set of all family members in a बहुत बड़ा large family, मतलब joint family है, ठीक है, बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत मेंबर्स है उसमें, तो उसमें जितने भी उस फैमिली के मेंबर्स है वो फैमिली के मेंबर्स का ये सेट है। व्हाट इज सेट है?
set A, set of all the members which belongs to that particular family. Is this clear everyone? अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, ठीक है, समझ जाना तुम लोग. R is a relation x comma y. X is a brother of, or let's say X is a wife of, okay, ज्यादा क्लियर होगा, X is a wife of Y. अब मुझे एक बात बताओ, X is a wife of Y है, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, सेट ए के अंदर जितना भी, सेट ए क्या बताओ तो कलेक्शन ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली का जितने भी फैमिली मेंबर्स है उसका कलेक्शन है. अब एक बात बताओ, क्या X is a wife of X हो सकता है? Is it possible? Tell me. X is a wife of X. Is it possible? नहीं होगा ना? So बस लिख दो. X. Yes sir. सर X का फ्रेंड हो सकता है. X is a नहीं मैंने वाइफ का बात किया है. नहीं वो भी नहीं हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है. X is a friend of X. That is not possible. वो तुम्हारा मतलब बोलते हैं ना लिटरेचर में पॉसिबल होगा. लिटरेचर में मतलब वो जो मैंने स्कूल टीचर को पूछा था, सर ने बोला था हाँ हो सकता है, इसलिए मुझे ये कंफ्यूजन. नहीं एक्चुअली मैथमेटिकली ये पॉसिबल है. X is a, I mean I cannot say, हाँ अगर कजन मतलब सिमेट्रिक में भी पार्ट में आएंगे, I will come to the part symmetric, but अभी तो ये पॉसिबल नहीं. X is a friend of Y, I mean X is a friend of X. How X can be a friend of X? वो तुम्हारा पोएटिक मतलब बोलते हैं ना हम लोग, वो जो मेटाफर सिमिली वो सब वो अलग लैंग्वेज हो गया. बट मैथमेटिकली आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, आई एम श्योर इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, जैसे X is not a, I mean if we are relating ना, right, we are relating, तो हम कैसे बोल सकते हैं आई माय फ्रेंड, हम तो मैं खुद का ही दोस्त, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा दोस्त नहीं. वो तुम्हारा मैथमेटिकली नहीं होता ये चीज. मैथमेटिकली ये हम ऐसे नहीं बोल सकते, राइट एवरीवन. सो अगर हम मैथमेटिकली बोलेंगे तो ये गलत है. X is a wife, तब तो X is a wife of X, तब ये भी पॉसिबल हो जाएगा फिलोसफिकली. ठीक है, X is a husband of X, फिलोसफिकली बहुत, हम मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं खुद ही अकेले में जी लेता हूँ. मतलब इसे सेवरल टाइम्स लाइक दैट, लाइक हम लोग बहुत बोलते हैं ना, मतलब ये चीज लिटरेचर वाले टीचर बहुत अच्छे से समझाएंगे. वो लोग इतना मजे से समझाएंगे कि तुमको वाकई में लगेगा कि ये ट्रू है. बट मैथमेटिकली ये चीज इनकरेक्ट है. मैथ्स में ये चीज नहीं होता है. समझ में बात? हाँ, ये चीज मैथ्स में नहीं होता है. So X is a wife of Y, तो इसमें तुम्हारा कभी भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है. तुम्हारा ये सब 1 मार्क्स में आ सकता है. तो एक बात बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? सो योर आंसर विल बी नो, क्योंकि तुम सिंपली एक ही बात बोलोगे, X cannot be a wife of X. A person cannot be wife of itself. Simply हम ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है. So I hope the meaning of reflexive is clear to everyone. Clear? And I hope that you understood this topic, that I cannot prove for all numbers. So what we do, we take the representative of that numbers. मतलब वो सारे numbers का हम representative लेते हैं और हम arbitrary prove करते हैं, मतलब general तरीके से prove करते हैं. हम एक एग्जांपल लेके कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे. हम एक एग्जांपल लेके कैसे प्रूव कर पाएंगे बताओ तो? हम एक एग्जांपल लेकर के कैसे प्रूव करेंगे, कर पाएंगे कि A belongs to a natural number, 1 belongs to a natural number, 1, 1 belongs to 1. 2 belongs to a natural number, 2, 2 belongs to 1. I cannot prove. It is not possible actually. So everyone please copy down whatever doubts you have, please clear the doubts now. See everyone. Now what is symmetric relation? अब देखो ध्यान से, सारे में कंडीशंस अलग अलग है. सिमेट्रिक को प्रूव करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दें. देखो पहले तुमको इस चीज को दिमाग में एकदम नोट कर लेना होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का तरीका क्या होता है. सेट ए, मतलब R इज अ रिलेशन इन A, तो सेट A को पहले देखना है और उस सेट का हर एक आइडेंटिटी पेयर जो है किसमें बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन R के अंदर. अब तभी बिलोंग करेगा जब वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब बात ये कि हाउ टू शो दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक. सो आई वांट योर अटेंशन हियर. Let us take one example. Suppose you have a set A in which the elements are suppose 1, 2, 3 and 4, and relation R contains 1, 1. So let's say 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3, and 3, 3.
अब देखो ध्यान से, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले क्या देखते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग पहले देखते हैं सेट ए। ट्रांस सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे पता है? नॉट सेट ए, वी विल नॉट सी सेट ए, वी विल ऑब्जर्व रिलेशन फर्स्ट। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मतलब क्या दिख रहा है पता है? मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि उसका इमेज भी क्या होना चाहिए बताओ तो? सेम होना चाहिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब उसका इमेज क्या होना चाहिए बताओ तो? सेम होना चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे, हम लोग रिलेशन अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम क्या चेक करेंगे? हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर लेने के बाद we will pick each and every ordered pair, we will pick each and every ordered pair in relation R. Just a minute. Everyone note down how to show that a relation is symmetric. So I was here in the topic that symmetric proof करने का तरीका क्या होता है कि symmetric proof करते वक्त कभी भी हम लोग symmetric proof करते वक्त कभी भी हम लोग ये नहीं चेक करते हैं कि सेट A के अंदर क्या है। हमको यहां देख के कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज सिमेट्री का कंसेप्ट ही क्या बताओ तो? सिमेट्री का कंसेप्ट है रिलेशन आर के अंदर एवरी एलिमेंट, एवरी ऑर्डर्ड पेयर, एक्चुअली आई मस्ट से एवरी ऑर्डर्ड पेयर व्हिच इज एन एलिमेंट इन रिलेशन आर का जो इनवर्स है, इनवर्स मतलब समझते हो ना? मतलब 1, 2 है तो 2, 1। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग, लाइक सपोज ये 1, 2 है, 1, 2 है तो 1, 2 को इंटरचेंज करके, ठीक है, 1, 2 को इंटरचेंज करके क्या मिलेगा? 2, 1। अब बताओ मुझे क्या 2, 1 बिलोंग कर रहा है के अंदर? अब 2, 1 ले लिया, ठीक है। 2, 1 का अगर हम रिवर्स करें तो क्या होगा? बिलोंग कर रहा है। 3, 4 का, 4, 3 का, 3, 3 का, समझ में मेरी बात? मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक में क्या चेक करना होता है? देखो, सिमेट्रिक में चेक करना होता है कि अगर इफ A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, अगर A, B R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, then it is compulsory that B, A must also belong to relation R. Is this clear to you everyone? मतलब ये कंपलसरी है कि अगर A, B R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब A, B बिलोंग कर रहे हैं तो फिर बस इसको इंटरचेंज करके देखो कि वो B, A भी उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर बिलोंग कर रहे हैं मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक है। बट याद रखना, अगर A, B बिलोंग कर रहे हैं तो अब तुम अगर ऐसे सोच लो कि आउट ऑफ बॉक्स, यहां से ना देख करके तुम यहां देखो 2, 3 R के अंदर बिलोंग कर रहा है, पहले तो तुमको देखना पड़ेगा कि क्या वो R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं अभी। हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई आई एम, पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने ये कहा कि रिलेशन R को सिमेट्रिक चेक करने के लिए पहले हम कभी भी सेट नहीं देखेंगे, हम रिलेशन को देखेंगे कि इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का चेक, मतलब इंटरचेंज करके कंपोनेंट्स को फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट बना करके क्या वो भी R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? अगर बिलोंग करे मतलब वो रिलेशन ट्रांस सिमेट्रिक होगा, अगर वो बिलोंग करे मतलब वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? नाउ if you have got doubt please you can ask, okay? So everyone note down, मतलब इससे एक चीज तो क्लियर होता है कि अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है मतलब ये हुआ कि वो उस रिलेशन का कंडीशन को सेटिस्फाई किया था तब बिलोंग कर रहा है। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर A, B R के अंदर बिलोंग कर रहा है मतलब A, B उस पर्टिकुलर रिलेशन का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई किया था तभी वो R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। So make sure that उसके एलिमेंट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको। ऐसे थोड़ी ना जबरदस्ती लिख देंगे हम रिलेशन आर के अंदर। क्या जबरदस्ती रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या हम लिख देंगे क्या कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए नहीं 2, 1 भी होना पड़ेगा? It cannot be like this. It has to be this way that 1, 2 satisfies the relation, 2, 1 also must satisfy the relation. Are you getting my point everyone? So let us do few questions based on this so that your concept is clear. So let us start with even numbers. I mean जो मैंने लिया था examples वो सभी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बोलो, suppose R is a relation in A where A is set of all lines in a plane.
relation R is L1 comma L2 where line 1 is parallel to line 2. Now symmetry के लिए क्या देखना है? सुनना एक बार बात, मतलब अपने लोगों को रिलेशन R के अंदर तो बहुत कुछ है, बट हमको चेक क्या करना पता है? सिमेट्रिक में चेक क्या करना होता है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, तो बस तुम उसका इंटरचेंज कर दो और इंटरचेंज करके देखो कि क्या वो भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. क्लियर एवरीवन? मतलब हम क्या करेंगे देखना एक बार. लेट L1, L2 belongs to set A. मान लेते हैं कि दो लाइंस जो सेट A में बिलोंग कर रहे हैं वो ऐसा है such that मतलब वो ऐसा है कि वो ऑलरेडी रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं. समझना मैंने क्या किया? मैंने एक अजम्पशन ले लिया कि वो बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर. अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता है? ऑब्वियसली कोई ना कोई दो लाइंस तो होगा ही जो एक दूसरे से पैरेलल होगा, वो और R के अंदर बिलोंग करेगा. तो ये इसको मैंने अज्यूम कर लिया बिकॉज सिमेट्री के लिए क्या देखना होता है? सिमेट्री के लिए देखना होता है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग कर रहे हैं, आप उसको इंटरचेंज करके देखो कि क्या वो भी R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. तो मैंने ले लिया एक ऑर्डर्ड पेयर जो R में बिलोंग ऑलरेडी कर रहे हैं. इट इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो R में बिलोंग कर रहे हैं मतलब वो पैरेलल एक दूसरे से तभी तो R में बिलोंग कर रहे हैं. एक बात बताओ, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L1, क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नो. तो क्या मैं बोल सकता हूं L2, L1 बिलोंग्स टू R? तो क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, यस एब्सोल्युटली, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रिलेशन के लिए अगर एक ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग करेगा तो ये बहुत नेचुरल सा बात है कि इंटरचेंज करके जो एलिमेंट्स आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, वो भी R के अंदर बिलोंग करेगा ही. तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम कोई भी दो लाइंस ले लो, उसको इंटरचेंज करके तो हमेशा वो पैरेलल ही होगा. समझ में मेरी बात? अब तुम लोग नहीं सर, अगर मान लीजिए कि हम लोग R के अंदर 1,2 है और 2,1 हम ना लिखे तो ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन वो अलग केस हो गया. लेकिन तुम एक बात दिमाग में रख लो कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के हिसाब से अगर लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे से पैरेलल है तो क्या L1, L2 अगर R के अंदर बिलोंग करे तो L2, L1 नहीं बिलोंग करेगा? डेफिनेटली बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरचेंज करने से भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही. समझ में बात? अब हम एक काम करते हैं, सेट ए सेम रख देते हैं और कंडीशन चेंज कर देते हैं. रिलेशन R L1, L2, L1 is perpendicular to L2. अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, पहले बताओ ये रिफ्लेक्सिव है. नहीं, पहले बताओ मुझे क्या ये नॉट रिफ्लेक्सिव. Can you tell me why it is not reflexive? Sir, L1 cannot be perpendicular to itself. Means a line cannot be perpendicular to itself, hence it is not a reflexive relation. But is this a relation symmetric or not? It is symmetric. Yes, because line 1 perpendicular to line 2 is same line 2 perpendicular to line. ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इससे परपेंडिकुलर, बात तो बराबर ही हुआ. समझ में मेरे बात? लेकिन a line cannot be perpendicular to line, I mean itself. So that's why it is not a reflexive, but it is symmetric relation. I hope you got my point, everyone. Clear, everyone? तो एक बार कॉपी कर. नहीं कर पाएंगे. Now, the last one is transitive relation. ये बहुत ही अलग टाइप है. ये ट्रांजिटिव है क्या देखना है, सुनना है. ट्रांजिटिव में भी हम लोग रिलेशन R को देखेंगे. क्या देखेंगे? If A, B and B, C दोनों एक साथ में रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं, A, B, B, C दोनों एक साथ में रिलेशन R में बिलोंग करें, तो देखना क्या है? देखना ये है कि क्या A, C भी R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं या नहीं. समझ में? क्या A, C भी R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अब सुनना बात को ध्यान से. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x इज द वाइफ ऑफ y1. ठीक है, ये इस एग्जांपल से ये वाला चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो. x, y, x is a wife of
वाई। नाउ एक बात बताओ मुझे, ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? अच्छा एक बताओ, पहले ये बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? यस और नो, टेल मी। नो सर। नो। क्या ये रिलेशन, ओके फाइन, बिकॉज अब x cannot be a wife of x, फाइन। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? नो सर। Because x is a wife of y, No, y sir. cannot Y is be husband of X can't be. absolutely, you are true. Okay, so y is husband of, आप जो correct हो। Now number 3, अब एक बात बताओ, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? कोई बता सकता है? Sir, it's an absurd statement. It's not an absurd statement. क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। बताइए, ट्रांजिटिव होगा? ये होगा, कैसे होगा बता रहा हूं। बात को समझो एक बार, बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मानव एज आंसर्ड होगा, अब कैसे होगा मैं बता रहा हूं। एक बात बताओ, अगर तुम ये बताओ मुझे, इस रिलेशन के अंदर क्या ऐसा बिल होगा कंडीशन? क्या ऐसा कंडीशन होगा? तुम एक बार सोच के बताओ। No sir. क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है? सुनना बात को ध्यान से। X is a wife of Y. X is a wife of Y. Y is a wife of Z. I mean, is it possible? एक बात बताओ तुम, क्या ये X, Y और Y, Z, क्या ये दोनों रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? No sir. तो मैंने तो ये बोला था ना कि अगर A, B और B, C बिलोंग करेगा तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर X, Y और Y, Z वाला कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर तुम चेक क्या करोगे? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि X, Y और Y, Z तो बिलोंग ही नहीं कर रहे रिलेशन आर में। क्या बिलोंग कर रहे हैं? तुम ये बताओ मुझे, बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब तुम बोलोगे नहीं सर, लेट अस अस्यूम अ सिचुएशन। हाउ कैन यू अस्यूम दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? नाउ यू टेल मी, how can I assume this type of situation? Can I assume this type of situation? मतलब बुद्धि भी तो लगाना पड़ेगा। मैथ्स को समझ में है तो let us assume is not over. Assumption is always based on facts and logic. Is this logical? So if this is not logical, I mean this is not happening, how can we think of this to happen? Are you understanding my point? How can we think of this to happen? अगर ये अकर ही नहीं कर रहा है आर के अंदर तो फिर ये कैसे अकर करेगा? तो जब ये अकर नहीं करेगा मतलब ये क्या है? मतलब इस तरह का सिचुएशन नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आई? How did it become transitive? अच्छा एक बात बताओ, A, B, B, C आर में बिलोंग कर रहे हैं? No sir. अगर अच्छा एक बात बताओ, अगर बिलोंग कर नहीं रहा है तो तुम चेक किस बात का करोगे? चेक किस बात का करोगे कि A, C बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे? टेल मी, जस्ट गिव मी द रीजन। Sir, if you can't check, then how are we saying it's transitive? ऑब्वियसली अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये तुम्हारा बिलोंग कर ही नहीं रहा है रिलेशन आर के अंदर, तो कंडीशन तो मैंने ये लिखा है ना, इफ अगर ये बिलोंग करेगा तो A, C बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है? टेल मी। हाँ अगर ऐसा होता, सुन एक बात ध्यान से, अगर ऐसा होता कि लाइन 1, ये लाइन 1 है, ये परपेंडिकुलर है लाइन 2 से, ठीक है? लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। बात को ध्यान से समझना। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ट्रू। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, यस ट्रू। नाउ अब हम यहाँ पे चेक कर तो तभी ना रहे ना जब ये कंडीशन वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब रिलेशन आर में क्या ये बिलोंग करेगा? बताओ तुम, क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करेगा? Yes. ना अब हम यहाँ चेक करेंगे ना कि क्या यहाँ पे L1, L3 बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ क्या मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा ना? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो L1, L2 आर में बिलोंग कर रहे हैं, L2, L3 आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा कि L1, L3 बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। करेगा तो रिफ्लेक्स सॉरी ट्रांजिटिव, नहीं करेगा तो नॉट ट्रांजिटिव। अब तुम यहाँ नहीं बोल सकते कि सर यहाँ तो नहीं होगा, ये फिर भी ट्रांजिटिव होगा। नहीं, ये कैसे होगा ट्रांजिटिव? क्योंकि ये कंडीशन तो कर रहा है ना एग्जिस्ट, इफ वाला तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करे तो ये तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? X is a wife of Y में X, Y, Y, Z ये तो कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, तो फिर तुम ये तीसरा के लिए कैसे चेक करोगे? तो तीसरा के लिए चेक नहीं करोगे तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या हुआ? मतलब इन शॉर्ट क्या ये चीज वायलेट कर रहा है? इज दिस कंडीशन इज वायलेटेड बाय दिस रिलेशन? Yes sir.
I'm saying, is this condition violated by this relation? No. How can you say yes? I'm asking you, is this condition No, sir, no. violated? No. Why? Because this is not belonging to R. So there is no question of this. Are you understanding my point? Agar ye belong hi nahi kar raha hai, so there is no question of checking this. It means that this condition is not violated by this relation. It means that the relation is a transitive relation. Matlab X is a wife of Y is a transitive relation. It is not reflexive fine, it is not symmetric fine, but it is a transitive relation. Yes or no? Tell me. Everyone. Yes, sir.